Welcome, friends. Once again, welcome to all of you with another episode of Conexia High Flyers. Friends, as everyone is aware, in these episodes, we talk to you about emerging companies from emerging sectors and make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. This process helps us to understand these companies better. We get to know about their business model, their future expansion plans, and what is the kind of investment opportunity available for investors. And in this process, we get a lot of valuable information from the management team, apart from the promoters, and that is why these episodes are extremely very rich in content and have been liked by all of us. So without wasting time, let's introduce the company today. In fact, today's company is very interesting, operates in a very niche space, and which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Esprit Stones Limited, and we have the pleasure of having the top management team, the promoters, all today. First, I would like to introduce Mr. Sunil, Lunawat, who's the promoter and managing director of the company. Sunilji, welcome to the show. Thank you very much for sparing your Hello valuable everyone. time with us today. Yeah. And we also have Mr. Nitin Gatani, who's the promoter and joint managing director of the company. Good Also, we evening. have Mr. Gatani, chief operating officer. Sir, welcome to both of you. Thank you for sparing your valuable time. And we also have Mr. Prakash Mangani, who's the chief financial officer of the company. Prakash ji, आपको भी धन्यवाद. Thank you for the time. So, gentlemen, without wasting time, let us start with the interview. My first question to Sunil ji will be, Sunil ji, you have started this company. You built a very strong kind of business model. If you could please tell us, in brief, what is the broad business model? क्या क्या products company बनाती है? What is the kind of the positioning of our company, and how did this business journey start? If you could just share a little time and tell us that whether it's a first generation effort or whether it was started by your father and then you took over. If you could please start and share your insights. Hello everyone. I am Sunil Lunawat, promoter and managing director of Esprit Stone Limited. So uh, we are a collaboration of two group, Gattani and Lunawat group. So Lunawat group is uh, jo- uh, basically Aravali group. Uh, we are into mining of soapstone, marble, uh, granite, and in 2016 we started quartz manufacturing plant, artificial stone manufacturing plant, and so behind starting this quartz manufacturing, we are into export market since long, like 8-10 years we are doing exports to US, and we came to know that the quartz is the next upcoming thing, and it was taking over the natural marble and granites. We came to know through our customers, so uh, we started this plant. In 2017 we started the production. We came up with the latest polishing technology of Briton, so which is the best in the world. And also we came up with super jumbo size, which was very unique at that time. Now it's common, but that time it was very unique. uh, and after this, gradually, with the increased demand and with our customer network, we introduced second production line, third production line, and we added another polishing line. So gradually, we were on increasing our production capacity, and also we added backward integration, like from quartz grit manufacturing plant, which is the main raw material, also the resin manufacturing plant. So we cover almost 95% of the raw material. And also we are doing forward integration, like we have a warehouse in Mumbai. We are coming up with experience center in Kishangarh, and we are the only company in India so who has so much of backward and forward integration. We have the top customers of US, top three customers of US, who have the multiple locations all over US. And in India also we have
almost like 64 dealers and almost 500 sub dealers. We have a sales team of more than 50%, which is distributed among internationally and domestically. And after this quartz manufacturing, we added another one more product, that is composite marble. So we call it Neo Marble and Terrazzo, so which is nowadays widely used all over India, and also we are exporting this product. Oh, fine. So this is the business model. This is fine. I think nicely articulated by you. So tell me one thing broadly. We want to understand that two products: unsaturated polyester resin and of course the quartz products. If you could tell us, which are the consuming sectors, since it's a B2B business. Just wanted to understand which sectors actually take up these products, and is the saturated polyester resin just consumed internally, or you sell it on a merchant basis to some other customers also? So if you could please share your thoughts. Yeah, for unsaturated resin, we are already selling this in the market also. It's a huge market. We have there are button clients are there, cooler clients I are think there, some FRP. disturbance was there, so I cannot hear it properly. Uh, for unsaturated resin already is there, and for there are many clients are there. Button resins manufacturers are there who take resins. Cooler manufacturers are there, and already quartz industry we are supplying to our competitors also. So it's a very big B2B market is there for unsaturated resin. Unsaturated resin, it is used for button industry, for cooler industry, for FRP sheets, and naturally for the quartz industry. So who are our competitors are there, we supply resin to them also. This is B2B product. तो एंड टॉप 10 जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके रेजिन के, तो कैपेसिटी वाइज वी आर वन ऑफ द टॉप 10 में से आते हैं हम लोग. Okay, okay. ठीक है, understood. Tell me one thing in terms of the revenue mix. I think Prakash ji will be able to give us a better idea. सर FY24 में अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखें तो क्वार्ट्स, फिर उसके बाद जो सुनील जी ने बोला कि कंपोजिट मार्बल है, प्लस ये अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन है, तो इसका मोटा मोटी सर ब्रेकअप कितना होगा? इफ यू कुड जस्ट गिव अस अप्रोक्सीमेटेड डेटा पॉइंट्स हियर. Yeah, thank you sir for asking questions. Basically जो हमारा टॉप लाइन 2024 का था, it was around 275 crores. So out of 275 crores, 80 crores is around 80 crores, or 30% is revenue from polyester resin, and remaining is from engineered marble and engineered quartz, which is around approximately 190 crores. Out of the 190 crores, करीबन 16-16.5 करोड़ रुपए का हमारा इंजीनियर्ड मार्बल है, एंड रिमेनिंग इज 173 करोड़ का जो है वो लगभग इंजीनियर्ड क्वार्ट्ज है. अच्छा, okay, I understood. Nicely articulated, Prakash ji. Prakash ji, now tell me one thing in terms of the capacity utilization. I was seeing your company's prospectus and presentation. Is there adequate capacity currently available with us कि हम ये capacity से आगे भी ramp up कर सकते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कुछ 55-60% का number है. Please correct me if I'm wrong. But currently for quartz as well as for unsaturated polyester resin, what's the average capacity utilization we are currently working on? So FY24 के अंदर, so basically we have 3 manufacturing plants. Fourth is also our manufacturing plant, but that is only for backward integration. That is basically our cost center rather than being a profit center. So अगर मैं 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं तो उसमें जो इनिशियली हमारा जो सबसे फर्स्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाली थी वो लकावली में थी, क्वार्ट्ज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसकी हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी पिछले 6 सालों में 3 गुना कर दी. ऑलमोस्ट 3 times वी हैव डन द कैपेसिटी एनहांसमेंट. एंड इनिशियली जो हमारा कैपेसिटी हमें जब लगा कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा कर रहा है, तो हमने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनहांसमेंट करना चालू किया. 2024 के अंदर हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो 57% के 57% के लगभग था. एंड सेकंड जो हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी, जो अभी नितिन सर भी बता रहे थे कि पॉलिएस्टर रेजिन की हमने सेकंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली थी, वो 2022 के अंदर हमने जून 2022 के अंदर वो प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट किया था. एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने उसकी अप्रोक्सीमेटली 62% कैपेसिटी यूटिलाइज करी है.
एंड थर्ड जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है इंजीनियर्ड मार्बल की, जो हमारी सब्सिडरी है हाईक्यू स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर है। उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज की तारीख फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इट वाज ओनली 12%। सो अगर आप देखें कि जो हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अच्छा खासा है, एंड अभी जो हमारा एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उससे हम कहीं बेटर कर सकते हैं, और हम करने भी जा रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है उसके बेसिस पे समवेयर हम 20% से हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो आगे आने वाले सालों में बढ़ाएंगे, जो एट प्रेजेंट इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने प्रकाश जी। नाउ वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो प्रकाश जी, कि अभी हमारा जो 275 करोड़ का रेवेन्यू है, इसमें से एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का ब्रेकअप मोटा मोटी कितना होगा? सर इसमें से एक्सपोर्ट लगभग हमारा जो है वो 58% एक्सपोर्ट्स है और 42% हमारा इंडिया मार्केट के अंदर। बट इसमें प्रैक्टिकली क्या है, जैसे कि आपको बताया कि हमारे बिजनेस सेगमेंट दो हैं। अगर हम इस जो टॉप लाइन है 275 करोड़ की, उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें, एज अ पॉलिस्टर रेजिन और एज अ इंजीनियर्ड स्टोन्स, तो जो पॉलिस्टर रेजिन 80 करोड़ का टर्नओवर है पूरा का पूरा इंडिया से है और B2B मार्केट से है। अब रिमेनिंग जो हमारा 190 करोड़ का टर्नओवर, जो हमारा 194 करोड़ का टर्नओवर जो इंजीनियर्ड स्टोन मार्केट से है, उसका 83% जो है वो एक्सपोर्ट से आता है और 17% डोमेस्टिक से आता है। समझ गया, आई थिंक गॉट द ब्रेकअप। प्रकाश जी, इसमें मेरे को बताइए कि विच आर द मार्केट्स, आई मीन बिकॉज़ वी नो वी हैव रेड समथिंग अबाउट इंजीनियर्ड स्टोन्स, क्वार्ट्ज के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है। मेरे को बताइए सर, डज यूएसए फिगर आउट एज अ मेजर काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल मार्केट, और आर देयर सम अदर कंट्रीज आल्सो वेयर आवर कंपनी इज एक्सपोर्टिंग? Currently, US is the biggest market for engineered quartz, or rather, I will say for Indian quartz, US is the biggest market because US के अंदर quartz का consumption comparatively दूसरी countries के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि ये एक niche product है जिसके अंदर pricing point जिसका higher है। तो US being a developed country इसका consumption आराम से कर लेती है, जहाँ की जो दूसरी countries है, developing countries है, वहाँ पे प्राइस पॉइंट की वजह से ये मटेरियल जो है वो कम यूज आता है, और पुराना जो नेचुरल मार्बल ग्रेनाइट और टाइल्स है वो सब चीजें ही वहां पे चल रही है। अब यूएस जब इसके अंदर यूएस के अलावा अगर अपन दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें, जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई में भले दुबई हो गया, मस्कट हो गया, ओमान हो गया, तो ये सारी कंट्रीज जो है ये अभी इसके अंदर इस चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। और यही रीजन है कि हमारा जो नेक्स्ट डेवलपिंग मार्केट है वो यूएस से हम लोग अभी मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं। प्लस इंडिया के अंदर भी इसका कंजम्पशन आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वहां पे कंसिस्टेंट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, रादर देन, क्योंकि ये एक शेल्फ ऑन द शेल्फ प्रोडक्ट है, जहाँ पे आप आज एक जो डिजाइन पसंद करते हैं वो आप 3 साल बाद भी वही डिजाइन आप वापस हमसे ले सकते हैं। और अगर आपको 1 लाख 2 लाख फिट माल एक जैसा चाहिए, यू कैन टेक दैट मटेरियल। तो टाइल्स जैसा इंफीरियर प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सुपीरियर प्रोडक्ट है जो कि मार्बल और ग्रेनाइट को रिप्लेस करता है। तो अपार्ट फ्रॉम यूएस, यूएई इज अ डेवलपिंग मार्केट, कनाडा इज डेवलपिंग मार्केट, इजिप्ट, बल्गेरिया, इन सब तरह, इवन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी इसकी अच्छी रिक्वायरमेंट है। और धीरे धीरे हम लोग जो हमारा जोग्राफिकली हम हमारा बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्रॉम यूएस मार्केट टू नॉन यूएस मार्केट एज वेल, एंड एज वेल एज इन इंडिया एज वेल। इंडिया में भी हमारा मिक्स जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, प्रकाश जी, मेरे को बताइए सर, वी एक्सपोर्ट इन अ बिग वे टू यूएस। आपने बोला यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर क्वार्ट्ज। तो सर यहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि मुझे याद है कई साल पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम ड्यूटी स्ट्रक्चर से हुआ था। अभी थिंग्स हैव नॉर्मलाइज्ड। नाउ व्हेन यू एक्सपोर्ट टू यूएस, टिपिकली एनी काइंड ऑफ ड्यूटी व्हिच दे हैव पुट ऑन दैट प्रोडक्ट, और इट्स अ फ्रीली इंपोर्टेबल प्रोडक्ट। हमारे धंधे में सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बताइए, व्हाट इज द करंट ड्यूटी स्ट्रक्चर and how does it favor our company? Does it have some fiscal incentive? Normally, of course, what we export from India, the Indian government obviously benefits exporters, but from US, are there any restrictions on the imports? या import duty ज्यादा है? तो थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइए। तो सर बेसिकली आपने बिल्कुल सही पेन पॉइंट पकड़ लिया इंडियन एक्सपोर्टर्स का, क्योंकि यूएस के अंदर ट्रेड रेगुलेशन ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर एक अनसर्टिनिटी बनी रहती है।
एंटी डंपिंग ड्यूटी हो या काउंटर वेलिंग ड्यूटी के। बट बेटर पार्ट ये है कि हम लोग इस सिचुएशन से निकल के आ चुके हैं। 2018 के अंदर इंडिया से जो क्वार्ट्ज एक्सपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी के एलिगेशंस लगे थे, और यूएस के जो इम्पोर्टर्स थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने 300% तक की ड्यूटी लगाने के लिए हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। पर हमने पहले साल के अंदर ही वो 300% की ड्यूटी नहीं लग, केवल 3% की ड्यूटी लगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जो 2019 के अंदर सेटल्ड केस हो गया था। उसके बाद हर साल इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू हो रहा है, और पिछले 3 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में आज की तारीख में केवल ड्यूटी 2% रह चुकी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और एंटी डंपिंग ड्यूटी 0% है। और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो रिस्क है, इस रिस्क से हम आगे निकल के आ चुके हैं, क्योंकि अब ये रिस्क हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने अपने आप को प्रूव कर दिया है पिछले 3-4 सालों में, जब हमने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो या वहाँ की जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको हमने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। एज अ क्वार्ट्स जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे उन सबने एक फेडरेशन बना के उसको अच्छी तरीके से फाइट किया, और अपने सारे पॉइंट्स रखते हुए उस ड्यूटी को, जो एलिक ड्यूटी 300% की थी, उस ड्यूटी को केवल और केवल 2% पे लाके खड़ा कर दिया है। तो एज ऑन डेट हमारा जो, आप बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल ट्रेड रेगुलेटेड फ्री है, और हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे किसी तरह का फ्यूचर के अंदर हमें इस तरह की परेशानी आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज से उबर चुके हैं। और दूसरा बेनिफिट हमारे पास ये है कि चाइनीज जो हमारे नॉर्मली दूसरे बिजनेसेस के लिए कॉम्पिटिटर रहते हैं, क्वार्ट्स चाइना से जो यूएस जाता है उस पर 300% ड्यूटी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि चाइनीज क्वार्ट्स जो है वो बैंड है वहाँ पे एक तरीके से। इसके लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज, जहाँ पे हम हमारे रेवेन्यूज बढ़ा सकते हैं, और इंडिया के अंदर से इंडिया का एक्सपोर्ट्स क्वार्ट्स को लेके दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बढ़ती जा रही है, और यूएस के अंदर डिमांड भी स्टेबल है और डिमांड बढ़ती भी जा रही है, और अदर देन यूएस कंट्रीज में भी अब इंडियन एक्सपोर्टर माल बेचना चालू कर रहा है। Yeah, Bilkul. I think very nicely told by you, Prakash ji. Sunil ji, I'd like to come to you now. Basically, sir, now currently our top line from quartz is about 180 odd crores. पर मेरे को बताइए सर, यूएस मार्केट क्वार्ट्स के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अगले 3 या 4 साल में, मोटा मोटी, इफ यू कुड टेल अस what is the opportunity size of this quartz market in US, because as Prakash ji was mentioning, this is a very big market. We have already established ourselves there. सर अगले 2-3 साल में what is your outlook which you can share with us, कि how will our company capitalize on this demand, and how will we grow if that quartz market in US market grows? So if you can please share your thoughts. सो जो मैं ट्रेंड देखता जा रहा हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था 2017 में, उस समय लाइक 30% क्वार्ट्स मार्केट था एंड 70% नेचुरल ग्रेनाइट एंड मार्बल यूज होता था। तो हर साल 10 से 15% की रिप्लेसमेंट करता जा रहा है, और आज की तारीख में लाइक 75 to 80% क्वार्ट्स यूज हो रहा है एंड 25 to 20% नेचुरल मार्बल एंड ग्रेनाइट यूज हो रहा है। तो ये काफ़ी हद तक इस मार्केट को कवर कर चुका है। और सेकेंडली, जो क्वाड्स में जो नई नई डिज़ाइंस और नई नई R&D के जो डिज़ाइंस आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउनफॉल आने वाला है, और ये मार्केट अच्छा ही होने वाला है, और काफ़ी नेक्स्ट 3-4 ईयर में काफ़ी बढ़ेगा और अच्छा ही करेगा। I think again nicely told by you, Sunil ji. Now tell me, Sunil ji, normally quartz or marble or granite का अगर हम cost comparison ले, is quartz slightly expensive than these two other products? I mean, what is it that basically drives people to go for quartz and not for marble and granite? And secondly, सर मेरे को एक बात बताइए कि हमारे लिए बेसिकली क्या फोकस रहेगा? अभी आपने डिजाइनिंग की बात बोली कि बहुत सारे डिजाइन आपको देने पड़ते हैं. Does the company have a internal design team? आप कस्टमर को किस प्रकार से obviously attract the customers by better designs or by better product quality? So on this, if you can please share your inputs. या सो हमारे पास इंटरनली काफ़ी अच्छी R&D टीम है, जो कंटिन्यूसली नए नए डिज़ाइंस पे काम करती रहती है, और कस्टमर से फीडबैक के आधार पे उनको डेवलप करती रहती है। सो दिस इज अबाउट That is fine. In terms of costing, सुनील जी जरा बताइए, कॉस्टिंग में कितना फर्क होता है क्वार्ट्ज में, मार्बल में, ग्रेनाइट? हाँ, कॉस्टिंग में लाइक कुछ कलर्स जो होते हैं वो नेचुरल मार्बल एंड ग्रेनाइट से सस्ते होते हैं, दे आर चीपर, एंड few colors are very expensive compared to marble and granite. So it all depends on designs. Okay.
अच्छा, बहुत से नेचुरल मार्बल ग्रेनाइट रेयरली अवेलेबल है, जो कि हम सिमिलर अगर क्वार्ट्ज में डेवलप करते हैं तो वी कैन प्रोड्यूस एनी क्वांटिटी। Okay. तो इससे और Understood. बस देखने जाए तो ये एकदम डिफेक्ट फ्री रहता है क्वार्ट्ज, और काफी कंसिस्टेंसी रहती है, स्क्रैच फ्री है, स्टेन फ्री है, ये काफी खूबियां रहती है क्वार्ट्ज में। Okay. Yeah, understood. Sunilji, now on the customer profile, we know that our business is a B2B model. But tell me one thing broadly, how many customers, as on date we are servicing, in the quartz market? I mean, if you can share some names, that will be good. Otherwise, sir, मेरे को सिर्फ broadly बताइए कि डायरेक्टली हम कस्टमर को सप्लाई करते हैं या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है यूएस में जो हमारा माल लेके फिर फाइनली कस्टमर को देता है. तो हाउ डज द सेल हैपन इन यूएस, फ्रॉम योर साइड? So mainly we work with distributors, or and we work with top three distributors in US who have multiple locations. Like each one has like 50, 40, 30 locations in the entire US. So they are very big, and I can name MS International is one of the multi-billion company we are working with them, and domestically also we have wide network. In domestic, we are working with distributors also doing the projects. Very understood. Okay, now one more thing which I wanted to ask Sunil ji is that can you tell us, what is the current demand scenario? Abhi on ground, now we have already seen the financial year FY25 starting. Sir, on ground, what is the kind of demand signals which you are seeing? Demand signals आपको क्या बता रहा है कि पिछले साल के हिसाब से this year whether it will be a much better year in terms of demand? And secondly, how is the pricing decided? Is the price decided on a quarterly basis कि भाई क्या कोई नया डिजाइन आ गया या मान के चलिए कोई नया एडिशन आप लॉन्च करते हो, तो सर प्राइसिंग इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन डिमांड सप्लाई, और हाउ इज इट दैट यू वर्क arrangements with distributors and with yourself, like since it's a B2B business, I'm quite sure obviously you work within a given budget. तो सर इसके बारे में बताइए कि प्राइसिंग हर प्रोडक्ट के ऊपर कैसे डिसाइड होती है और ऑन ग्राउंड लेवल पे सर आपको क्या डिमांड सिग्नल मिल रहे हैं? सो प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए इसमें बेसिकली दो मॉडल चलते हैं। एक तो जिसमें बेसिक डिजाइन्स होती है जो बिल्डर्स प्रोग्राम में चलती है, तो उनमें काफ़ी कॉमन डिजाइन्स होती है जो करीब करीब सारे मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतने नहीं रहते, एक फिक्स प्राइस के आसपास ही चलती रहती है। ऑब्वियसली जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, वो थोड़ी बेटर प्राइस मिलती है। एंड अदर इज लाइक एक्सपेंसिव डिजाइन्स जो होती है, यूनिक डिजाइन जो होती है, उनकी प्राइस डिजाइन के हिसाब से आप जैसी नई डिजाइन इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक इन द टेक्सटाइल मार्केट में जैसा होता है कि नई डिजाइन्स की अच्छी प्राइस मिलती है और ग्रेजुअली वो कॉमन हो जाने पे कम हो जाती है। तो दैट दिस इज ओनली वे बात। Okay. Okay. So basically, it all depends on the design. That is the key indicator that how you get a better price. That is, I think, the Yeah, main driver for getting better price. Okay. and how that Achha, design is popular. exactly. No, no, I got your point. Sunilji, now tell me one thing. Since you have started the company, you know in and out about the company's operations. Tell me one thing, sir. ये धंधे में सबसे बड़ा differentiating factor क्या है? Like काफी दूसरी quartz companies भी है. Some of them are listed, some of them are private. Now, when we talk about our company, Spirit Stones, so what is the differentiation and what is the way we add value to the customer? If you could share 2-3 qualitative points, financial points तो सभी को पता है, but I want to know from you that in what way are we different and we do a much better job than competition in the same industry. So if you can please share some, insights. Yeah, definitely. So first we have the early mover advantage. We have amongst the best customers in our bucket. Then third, we have the very good production capacity. Fourth one is we have the backward integration of almost 95% of raw materials, which nobody has in India. And also we have the forward integration, and our branding uh, under the name of HiQ, we are branding. So that name is very famous in India nowadays. Okay, And okay, also internationally also we are
doing marketing very well. So our distribution network is very strong. Okay. No, understood. I think so. All these things actually give you a very strong, competitive moat, which is very important for us. So anyway, I think nicely articulate. Now, Prakash ji, coming to the financials, we saw a very strong performance in FY24. Profits have jumped from almost 3 crores plus to almost 10 crores plus profits. रेवेन्यू भी अच्छी तरह से बढ़ा है. तो सर पहला तो बताइए सर, ये जो परफॉर्मेंस आया है इसमें एक्चुअली क्या हो गया कि जिससे रेवेन्यू भी बढ़ गया, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गए. But what was the key reason? And secondly, without putting a number, we do understand this is an order book business. So whatever has been stated in the prospectus, if you could share what is the current order book with us and what is the outlook on margins? Can we confidently say that for FY25 these margins will be at least be sustained or maybe even they can improve? So sir, इसके बारे में बताइए. सो बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया था कि हम पहले केवल क्वाड्स के अंदर थे एंड लास्ट लास्ट 1.5 ईयर से ही हम लोग क्वाड्स का रेजिन में भी आए हैं और इंजीनियर्ड मार्बल के अंदर भी आए हैं. सो बेसिकली जो टॉप लाइन आप इंक्रीमेंट देख रहे हैं फ्रॉम 170 करोड़ टू 275 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू बढ़ा है. इसमें से अगर आप देखेंगे तो दो चीजें इसके अंदर, 55 करोड़ का रेवेन्यू जो बढ़ा है वो हमारा रेजिन का बढ़ा है लगभग, क्योंकि पॉलिस्टर रेजिन का जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो हम 62% तक ले गए और ऑलमोस्ट 113 करोड़ का स्टैंडअलोन उसका बिजनेस भी है. बट अगर इंटर कंपनी एलिमिनेशन हटा देता हूँ तो 80 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो हमको टॉप लाइन के अंदर उसने कंट्रीब्यूट किया है रेजिन में. तो टॉप लाइन हमारा बढ़ने का 100 करोड़ में से 55 करोड़ रुपए 55 करोड़ रुपए लगभग रेजिन की तरफ से वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है. रिमेनिंग 45 करोड़ जो इंजीनियर स्टोन मार्केट जो है उसको भी अगर मैं स्प्लिट करूंगा 45 करोड़ को, तो उसमें से 16-16.5 करोड़ रुपए जो है वो लगभग इंजीनियर्ड मार्बल की वजह से हैं. रिमेनिंग जो बचा 29 से 30 करोड़ रुपीस वो क्वार्ट्स की वजह से है. तो एक अच्छा खासा हमको क्वार्ट्स में भी एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिली है 20-25% की ईयर ऑन ईयर. एंड रिमेनिंग में जैसे क्वार्ट रेजिन में ऑलमोस्ट हम 25 करोड़ का टर्नओवर किया था FY23 में, अभी हमने 80 करोड़ का टर्नओवर किया, तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना वहाँ भी बढ़े हम. एंड इंजीनियर्ड मार्बल क्योंकि लास्ट ईयर हमारा पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ना तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था ना हमारा प्लांट पूरी तरीके से कमीशन हुआ था, तो उसमें 1.5 करोड़ का रेवेन्यू था और वो हमने अभी 16-16.5 करोड़ रुपए क्लोज किया है. तो ये एक इन तीन रीजन की वजह से हमारा टॉप लाइन बढ़ा, नंबर 1. अब सर इबिटा, अब अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर थे वो एक एक्सेप्शनल ईयर था हमारे लिए 2023, जहाँ पे कुछ समय के लिए एक एंटीसिपेशन था कि इंडियन क्वार्ट्स पे ड्यूटी आ सकती है. तो उसकी वजह से 3 से 4 महीने तक हमारा बिजनेस जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से हम उस दौरान हमने हमारे ऑपरेशंस कम नहीं किए. हमारे जो फिक्स कॉस्ट से हमारी फिक्स कॉस्ट लग रही थी, क्योंकि वी वर कॉन्फिडेंट इनफ कि जैसे हमने प्रीवियस ईयर्स के अंदर 0% ड्यूटी या 2% ड्यूटी तक हम लेके गए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग 2% ड्यूटी में कर लेंगे. तो जो एंटीसिपेशन था, उस एंटीसिपेशन वजह से 4 महीने थोड़े से हमारे बिजनेस के अंदर ऊपर नीचे गए थे. बट देन फिर वापस हम लोग ने वी केम बैक टू द अर्लियर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो जिसकी वजह से लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था बहुत ज़्यादा कम हो गया था और इस साल वो प्रॉफिट रिवाइव हुआ है. प्लस इसके अंदर कैसे इंजीनियर्ड मार्बल वाला जो बिजनेस है, इंजीनियर्ड स्टोन का बिजनेस है, वो 12-13% इबिटा का बिजनेस है और जो पॉलिस्टर रेजिन वाला बिजनेस है वो 7 से 8% का इबिटा वाला बिजनेस है. तो अब जब 80 करोड़ रुपीस वाला बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इबिटा कम है और इसमें थोड़ा इबिटा ज्यादा है, तो ओवरऑल इबिटा जो हमारा है वो 11.5% के लगभग आया, 11-11.5% के लगभग आया. अब आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा जिसके अंदर कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं. तो सर अगेन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट ने जिस तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है पिछले लास्ट 2 सालों के अंदर, वो एक सोच समझ के एंड एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म में किया है. भले ही वो कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट हो या ब्रांड में इन्वेस्टमेंट हो. आज हाईक्यू में ब्रांड में एज ए ब्रांड में भी हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है. लास्ट ईयर हमने पानी कपूर को एज ए हमारे ब्रांड एम्बेसडर किया था. डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर हम अच्छा काम कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 44 लोगों की हमारी टीम है सेल्स एंड मार्केटिंग की, जो जॉइंटली इंजीनियर्ड मार्बल और इंजीनियर्ड स्टोन को मार्केट करती है. 50 से ज़्यादा डीलर्स को देखती है. 100 से ज़्यादा आर्किटेक्ट्स हैं हमारे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड है और करीबन 500 सब डीलर का नेटवर्क है हमारा. तो इन सबको कैटर करने के लिए हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है
और जैसे कि यूएस के अंदर एक डेवलप्ड इकोनॉमी की वजह से वहां पे क्वार्ट्स का डिमांड बढ़ रही है, हम ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर भी ये क्वार्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो एट प्रेजेंट हम अगर बात करें कि यूएस जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट है उसके अंदर भी, जैसे सुनील सर ने बताया आपको, कि हम वहां पे भी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पहले ग्रेनाइट और मार्बल को हम वहां पे रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ से इंडियन मार्केट से एक्सपोर्ट्स अच्छा खासा होने वाला है यूएस में। अदर देन यूएस कंट्रीज की बात करें, जो हमने आपको बताया कि हमने सऊदी अरेबिया के अंदर एक अच्छा खासा टाइप किया है, एक बड़ी कंपनी, बड़े ग्रुप है सऊदी के, वहां से उनसे टाइप किया है, एक्सक्लूसिव हाईक्यू एज अ ब्रांड प्रोडक्ट वो हमारे बेचेंगे। तो वहां पे भी हम अदर देन यूएस भी हम लोग अच्छा खासा ग्रो करने की क्षमता रख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे इंडिया के अंदर जो मैंने आपको बताया कि हाईक्यू जो ब्रांड को हम ग्रो कर रहे हैं, तो हो ही रहा है। अब इन सबको करने के लिए क्या हमारे पास कैपेसिटी है? यस, डेफिनेटली हमारी स्पेयर कैपेसिटी, जैसा हमने इंटरव्यू की स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ओनली 57% कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं। तो वहां से इंजीनियर्ड स्टोन की 57%, क्वार्ट्स की 57% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो अगर 70-80% तक का सफर तय करना है हमें, तो इजीली डूएबल टास्क है। और वो इजीली रेवेन्यू अगर हमारे पास आएगा, हमारी ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगी, तो हमें प्रोडक्शन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, भी हमारे पास कैपेसिटी स्पेयर कैपेसिटी में चल रहा है। और जो अभी हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हमें दिख रहा है, जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, उसके हिसाब से हमारी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। एग्जैक्ट नंबर तो, क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक जो होती है वो हर महीने के हिसाब से मंथली बेसिस पे हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, बट अगले 2 महीने के ऑर्डर्स हमारे पास ऑलरेडी बुकड है, एंड ऑलमोस्ट हमारे पास 25 से 30 करोड़ की ऑर्डर बुक अवेलेबल है। बिल्कुल, आई थिंक वेरी नाइसली टोल्ड बाय यू प्रकाश जी। सुनील जी, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, कंपनी का पब्लिक इशू हो रहा है, तो थोड़ा सा पब्लिक इशू के बारे में बताइए। व्हाट इज द साइज ऑफ द कैपिटल रेज व्हिच कंपनी इज प्लानिंग, एंड सर ये ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे ख्याल से अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, बिकॉज यू आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सर, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर रेजिंग फंड्स, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द कैपिटल ऑफर, so that all our investors can understand this input? सो द इश्यू साइज है वो ऑलमोस्ट 50 करोड़ का है, और जो ये 50 करोड़ है, तो हम लोग इसका कुछ पार्ट तो हमारी वर्किंग कैपिटल में हेल्प करने के लिए लेंगे, एंड कुछ पार्ट जो हमारी सब्सिडरी है हाईक्यू स्टोन में जो भी डेट है, तो वो क्लियर करने के लिए। Okay, so some part of it will be used for working capital and some part of it will be used to repay debt. That will be the main, effect. So, Prakash ji, again another finance related question to you. Whatever debt we are repaying, सर इसमें कितना मोटा मोटी हम इंटरेस्ट कॉस्ट सेव करेंगे? और मेरे को बताइए कि सर मोटा मोटी कैन वी से दैट this will also help us in reducing our working capital cycle, because normally working capital cycle अगर मैं आपको पूछूं प्रकाश जी, normally मोटा मोटी for domestic and export, how long is the working capital cycle, if you can please share? सर बेसिकली जो 50 करोड़ का हमारा आईपीओ प्रोसीड्स आएगा, उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 करोड़ 19.50 करोड़ हम जो है वो डेट रिपेमेंट के लिए कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म डेट है, जो हमने हमारी हाईक्यू स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है उसके अंदर लिया था। एंड वहाँ पे हमने जो इनिशियली बिजनेस सेटअप करने के लिए हमने ये लोन लिया था। अब हम ये 19.5 करोड़ का लोन रिपेमेंट कर देते हैं, ऑलमोस्ट हमारा साल का 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 से 2 करोड़ रुपया सेव होने के ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि हम इतना डेट इतना इंटरेस्ट कॉस्ट पे सेव करेंगे। सेकंड पार्ट में आपने पूछा वर्किंग कैपिटल के लिए, तो अगेन जो रिमेनिंग हम 6.5 करोड़ की वर्किंग कैपिटल जो है हम लोग हाईक्यू स्टोन्स के लिए ले रहे हैं, और 14 करोड़ जो है वो एस्पिरिट स्टोन के लिए ले रहे हैं। तो 20 करोड़ 50 लाख रुपए लगभग हमारा वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग ले रहे हैं। अगर हमने वर्किंग कैपिटल इक्विटी के लिए थ्रू नहीं लिया होता, तो ये वर्किंग कैपिटल किसी ना किसी डेट फॉर्म में ही आता। तो अगेन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो यहाँ पे अगेन 20 करोड़ रुपए के ऊपर मोटा मोटी 9% के हिसाब से भी अपन जाएंगे, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की सेविंग्स यहाँ भी हो रही है फाइनेंस कॉस्ट की। तो मोटा मोटी ग्रुप लेवल पे 1.8 प्लस 1.8 3 से 3.5 करोड़ की सेविंग दिख रही है हमें, जिसकी वजह से हम लोग ने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू रेजिंग फंड्स थ्रू डेट, वी कैन गो थ्रू इक्विटी, एंड जो हमारा ग्रोथ स्ट्रेटेजी है या ग्रोथ में पार्टिसिपेट हम नॉर्मल पब्लिक को भी दे पाए। तो ये 3-3.5 करोड़ रुपए जो सिंपली हमारे फाइनेंशियल कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट में बच रहे हैं, उसकी वजह से हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल सर एट प्रेजेंट क्या है, डोमेस्टिक, जो अगर मैं अगेन इसको मैं 2 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इंजीनियर्ड स्टोन वाला सेगमेंट एंड रेजिन वाला सेगमेंट। इंजीनियर्ड स्टोन सेगमेंट के अंदर
हमारा जो एक्सपोर्ट्स है या डोमेस्टिक है वो 60 दिन की उधारी देनी पड़ती है और 60 दिन की हमको इन्वेंट्री भी लेकर चलनी पड़ती है। और क्रेडिटर जो हमें मिलता है वो 60 से 65 दिन के क्रेडिटर भी मिल जाते हैं। बट अभी क्या होता है सर, क्रेडिटर में क्योंकि एक इसके अंदर एक नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज हो रही हैं, तो क्वार्ट्ज ग्रिड जैसे हमारा ये है, पॉलिस्टर रेजिन यूज होता है, तो उसके अंदर क्या होता है सर कि हम अगर इमीडिएट पेमेंट करेंगे या फास्टर पेमेंट टर्म्स में पे करेंगे फेवरेबल, तो हमें उसमें फेवरेबल बेनिफिट मिलने का चांसेस है प्राइजेस वगैरह के अंदर। तो इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल डेज कम करते हुए हम इक्विटी के थ्रू पैसा लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से क्रेडिटर्स के डेज हमारे कम होंगे और वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा बढ़ेगा रादर कम होने की जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डेटर्स को जो है वो सिमिलर उधार या सिमिलर डेज पे हमें पेमेंट, सिमिलर डेज पे हमें माल बेचना पड़ेगा। अब अगर मैं रेजिन वाले बिजनेस के अंदर आता हूँ तो उसके अंदर 90 डेज का नॉर्मल डेटर्स का पीरियड रहता है और 70 डेज तक की हमें 60 से 70 डेज तक की हमें क्रेडिटर्स का पेमेंट मिल जाता है। बट वहां पे अगेन, वहां पे भी अगर हमें आने वाले टाइम के अंदर अगर हम वहां पे कुछ सेविंग्स करते हैं और फेवरेबल टर्म्स में क्रेडिटर से माल परचेज करते हैं तो प्राइसिंग में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ऑल टुगेदर बेसिकली ये 40 करोड़ रुपए, अगर हमने 45 करोड़ रुपए हमने अगर मार्केट से नहीं उठाए होते 50 करोड़ रुपए, तो हमने मार्केट बिजनेस से बैंक्स के थ्रू या फिर डायरेक्टर्स ने अपने कंट्रीब्यूशन के थ्रू दिया होता, तो वहां पे हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट लगती जो कि बच रही है। प्लस ये क्योंकि एक इमीडिएट इन्फ्यूजन आएगा तो हम लोग उससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और फेवरेबल टर्म्स पे हमें मटेरियल परचेज करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से अगेन हमारे एबिटा मार्जिन भी स्ट्रांग होंगे। Yeah, Bilkul, I think nicely said. Now, one question which I wanted to understand, Sunil ji, plus we have got Nitin ji as well as Sumit ji. Sorry for keeping you waiting, Nitin ji and Sumit ji. Now, tell me one thing, sir. Overall functional areas में Sunil ji आप क्या देखते हो? Sumit ji आप क्या देखते हो? Nitin ji आप क्या देखते हो? Because sir, people want to understand, how the management team functions. Since it's a, you all are also part of the promoter team. सर मेरे को बताइए आपका फंक्शनल एरिया क्या है सुनील जी, व्हाट डू यू सी, एंड देन वी कैन गो टू नितिन जी एंड सुनील। तो हम लोगों ने टीम को बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो मैं जनरली इंटरनेशनल सेल्स वाला पार्ट देखता हूँ एंड ओवरऑल मैनेजमेंट वाला। नितिन अकाउंट्स पार्ट हो गया अपना, जो पूरा फंड मैनेजमेंट ये सारा पूरा वो देखता है। सुमित प्रोडक्शन साइड देखता है और बेसिकली दैट इज हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आई थिंक नाइसली अविनाश जी, वन मोर प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट पर्सन में सिद्धांत जी लोनावत भी हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाए आज। ही इज द CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, एंड जो भी डोमेस्टिक का पूरा है वो ही लुक्स आफ्टर। अंडरस्टूड। आई थिंक नाइसली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शनल एरियाज है, जिससे ऐसा लगता है कि इट इज वेरी प्रॉपरली रन प्रोफेशनली। सो इट्स गुड टू नो यू हैव गॉट गुड एसेट्स विद यू। सुनील जी, लास्ट सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं कि सर अगर हम कोविड को छोड़ दें, हमारा धंधा इज ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, डोमेस्टिक में भी बढ़ रहा है, बट हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक एवरी बिजनेस हैज गॉट सम रिस्क अटैच्ड, बट इन आवर बिजनेस व्हाट कुड बी द मेजर रिस्क which you think can come? Of course अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, but what is the main risk in our business, and till now how have you managed to stay afloat, be profitable, and manage this risk very optimally? So if you can please share your thoughts on this point. तो जो मेरे को मेजरली लगता है वो क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मार्केट यूएस है और वहाँ ड्यूटी का थ्रेट रहता है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में मार्जिन्स काफ़ी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं, तो वो कभी हम लोग फेस नहीं करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा थ्रेट वही है। और इसके अलावा भी हमने क्योंकि पास्ट ईयर्स में हमने फेस किया है कि कई बार जो केस इनिशिएट हुए थे उनकी वजह से हमारे सेल्स में इफेक्ट आया था। तो इसलिए हम लोगों ने डोमेस्टिक में भी अपना मार्केट एक्सप्लोर करना काफ़ी स्टार्ट कर दिया, और अदर कंट्रीज जो भी है, सऊदी जो कि एक बहुत अच्छा इमर्जिंग मार्केट है, यूएई है मिडिल ईस्ट में, और जहाँ भी हम एक्सपोर्ट की संभावनाएं दिख रही है वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कोई दिक्कत ना। I think very nicely articulated सुनील जी, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन हमको दी। तो नितिन जी, सुमित जी, अगेन प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Thank you, मेरी Avinash. तरफ Thank you, से Avinash. आपको Thank you. मैनेज Thank you very much. सर, पब्लिक Thank you के so लिए भी much, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you. Thank you. Thank you so much.